آداب، میں ہوں محمد رفیع۔ پہلے خاص خبریں۔ جموں کشمیر کے دورے کے موقع پر راجناتھ سنگھ نے کیے امرناتھ کے درشن، لائن آف کنٹرول صورتحال کا لیا جائزہ۔ راجستھان میں سیاسی گہما گہمی عروج پر، کانگریس کی جانب سے جاری کردہ آڈیو ٹیپ کا CBI جانچ کروانے بی جے پی کا مطالبہ۔ ملک بھر میں کل کے مقابلے کورونا کیسز میں کچھ کمی، نئے 34,884 معاملے درج، پہلے مقام پر مہاراشٹر اور دوسرے مقام پر تمل ناڈو۔ اور پہلے دیسی ساختہ ویکسین کی تیاری میں پیش رفت، 12 دواخانوں میں 375 مریضوں پر کلینکل جانچ شروع، بھارت بائیو ٹیک کا انکشاف۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ لداخ اور جموں کشمیر کے 2 روزہ دورے پر ہیں۔ راجناتھ سنگھ کے دورے کا آج دوسرا دن ہے۔ وہ آج جموں کشمیر میں واقع امرناتھ کے درشن کیے۔ وزیر دفاع کے ہمراہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت، فوجی سربراہ MM نارونے موجود تھے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل راجناتھ سنگھ نے لائن آف کنٹرول کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کل لداخ میں فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا تھا کہ کوئی بھی طاقت ملک کی 1 انچ زمین کو چھو نہیں سکتی۔ راجناتھ سنگھ نے سرحد پر پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ راجستھان میں سیاسی بحران کے دوران کانگریس کی جانب سے جاری کردہ آڈیو ٹیپ کو لے کر ہنگامہ برپا ہوا ہے۔ بی جے پی نے راجستھان کے اشوک گہلوٹ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ٹیپ کے حقیقی ہونے کے بارے میں CBI سے جانچ کرائیں۔ واضح ہے کہ کانگریس کی جانب سے جاری کردہ آڈیو ٹیپ میں مبینہ طور پر بی جے پی کے ایک بڑے لیڈر و مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت کو ارکان اسمبلی سے بات چیت کرتے ہوئے پیشکش کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ بی جے پی کی ترجمان سمبت پاترا نے اس آڈیو ٹیپ کو فرضی قرار دیا۔ واضح ہے کہ کانگریس نے بی جے پی پر ارکان کی خرید و فروخت اور ریاستی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کا الزام لگایا ہے۔ پانچواں وشے، کیا راجستھان میں پرتیک ویکتی جس کا کوئی بھی سروکار راجنیتی سے ہے، چاہے وہ کسی بھی دل کا یا گٹ کا ہو، اس کا فون ٹیپ کیا جا رہا ہے کیا؟ Any person who may belong to any political group in Rajasthan, is his or her phone being taped in Rajasthan government is the question that we are asking today. یہ بہت کیٹیگوریکل کوشچن ہے، یہ ایک پارٹی کا وشے نہیں ہے۔ کسی بھی پارٹی سے کوئی بھی راجنیتک ویکتی ہو سکتا ہے، کیا ان سب کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں؟ کیونکہ جو ہمارے پاس فلپس آ رہے ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت غیر سنویدھانک کام راجستھان میں کیے جا رہے ہیں۔ اور انتم پرشن ہے کہ is it not a situation of an emergency in Rajasthan? A wheeled emergency in Rajasthan? ایک اپرتیکش روپ سے راجستھان میں آج ایمرجنسی لگایا نہیں گیا ہے کیا؟ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ایودھیا میں رام مندر تعمیر کرنے کے لیے رام مندر ٹرسٹ کا ایک اجلاس آج منعقد ہو رہا ہے۔ ایودھیا میں منعقد ہو رہے ایک اجلاس میں مندر تعمیر کمیٹی کے صدر نشین نروپیندر مشرا ایودھیا پہنچ گئے ہیں۔ مندر کے ماڈل پر ٹرسٹ کے اجلاس میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ٹرسٹ کے صدر نے یہ واضح کیا کہ مندر کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کو مدعو کیا گیا ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کافی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اب تک ملک میں کورونا کے متاثرین کی تعداد 10 لاکھ سے بھی بڑھ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 34,956 کورونا کے نئے مثبت معاملے درج ہوئے ہیں، جبکہ 24 گھنٹوں میں 671 افراد فوت ہو چکے ہیں۔ اس طرح کورونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 26,273 ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ اب تک اس جان لیوا وبا سے 6,53,751 افراد شفا یاب ہوئے ہیں۔ مجموعی طور پر اب ملک میں 3,58,692 فعال کیسز ہیں۔ ہندوستان دنیا کا ایسا تیسرا ملک بن گیا ہے جس میں کورونا متاثرین کی تعداد 10 لاکھ سے بڑھ گئی ہے۔ تلنگانہ میں کورونا کے 1,478 کیسز سامنے آئے ہیں۔ GHMC کی حدود میں 806 کیسز درج کیے گئے۔ ریاست بھر میں کورونا سے متاثر ہونے والوں کی مریضوں کی تعداد اب تک 43,496 ہو گئی ہے۔ آج 7 افراد کی موت ہوئی۔ تاحال اس وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 403 تک پہنچ گئی ہے۔
रंगारेड्डी में 91, मेडचल में 82, संगारेड्डी 20, वरंगल अर्बन 51, करीमनगर 77, जगतियाल 4, नलगुंडा में 35, निजामाबाद 11, मेदक 23, महबूबाबाद 11, पेद्दपल्ली 35, महबूबनगर 19, मंचिरियाल 15, सिरसिल्ला 27, आसिफाबाद 11, नारायणपेट 14, विकाराबाद 17, नगर कर्नूल 23, जंगांव 10, सिद्दीपेट 8, सूर्यापेट में 20 केसेस दर्ज हुए हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देसी साख्ता वैक्सीन की तैयारी में मुल्क की दवासाज कंपनी भारत बायोटेक इंटरनेशनल एक कदम आगे दौड़ाया है। भारत बायोटेक की जानिब से तैयार करदा कोविड-19 से हिफाजत का वैक्सीन को इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल के अच्छे नताइज बरामद हुए हैं। पहले मरहले के तजुर्बे में 375 अफराद को रजाकाराना तौर पर शामिल किया गया था, जिसके नताइज हौसला अफजा रहे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत के हक में फैसला आने के बाद सेक्रेटेरिएट के इंहदाम की कार्रवाई में ओहदेदारों ने तेजी लाई है। अब तक इंहदाम का 70% काम मुकम्मल कर लिया गया है। सेक्रेटेरिएट में वाक़ 11 ब्लॉक को पूरी तरह मिसमार कर दिया गया है। R&B और GHMC के इश्तराक से इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। इंहदाम किए गए इन इमारतों में G ब्लॉक, A ब्लॉक, C ब्लॉक, K ब्लॉक, H साउथ और H नॉर्थ के बशमूल सेक्रेटेरिएट के अहाते में मंदिर और मसाजिद की इमारतें भी शामिल हैं। साथ ही साथ इमारतों के मलबे को भी फौरी तौर पर हटाया जा रहा है। हुकूमत आइंदा 10 माह में एक शानदार सेक्रेटेरिएट की इमारत तामीर करने का इरादा रखती है। मुश्तरका दाखिलों के लिए मुनक्कद किए जाने वाले अहलियती इम्तिहानात को आइंदा महीने मुनक्कद करने के बारे में हुकूमत गौर कर रही है। ऑनलाइन इम्तिहानात के इनेकाद के लिए सितंबर में तारीख दस्तयाब नहीं है, जिसके लिए अगस्त में ही तमाम सेट्स मुनक्कद करने का फैसला किया गया है। एमसेट के बशमूल ई सेट और दीगर दाखिलों के इम्तिहानात मुनक्कद किए जाएंगे। इस ज़िमन में अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की वजह से हुकूमत इस मामले को मुलतवी रखा था। ताहम ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की जानिब से जारी करदा एकेडमिक कैलेंडर की मुनासिबत से सेट्स के इम्तिहानात मुनक्कद किए जाएंगे। ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 15 अगस्त से रियासत में इन टेस्टों का इनेकाद शुरू होगा। कोरोना वबा की वजह से गरीब और मुतवस्सित तबके बेहद मुतासिर हुआ है। खासकर रोजगार पर असर पड़ने से काफ़ी परेशान हाल हैं। मरकजी हुकूमत ने इस दुख दर्द की घड़ी में फौरी तौर पर परेशान हाल गरीब खानदानों को मदद करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का आगाज़ किया। इस स्कीम के तहत फूड सिक्योरिटी कार्ड रखने वाले खानदान के हर फर्द को मुफ्त ग़िज़ाई अजनास तकसीम किए जा रहे हैं। हुकूमत ने इस स्कीम को नवंबर तक तोसी दी है। हर इस्तेफादा कुनिंदे को मरकज़ की जानिब से 5 किलो चावल और रियासती हुकूमत की जानिब से 5 किलो चावल मिलाकर 10 किलो चावल दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ हर खानदान को 1 किलो तुवर दाल भी मुफ्त सप्लाई की जा रही है। मेडचल मलकाजगिरी जिले के उपल सर्कल में 1,07,000 फूड सिक्योरिटी कार्ड्स हैं। इन तमाम इस्तेफादा कुनंदगान को राशन के जरिए ये ग़िज़ाई अजनास मुफ्त में दी जा रही हैं। उपल सर्कल के असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर ए प्रेम कुमार ने ये जानकारी दी। सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक राशन शॉप्स पर अशिया तकसीम की जा रही हैं। काबिल गौर बात यह है कि समाजी दूरी और सैनिटाइजर का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। నా పేరు ఏ సత్యరెడ్డి. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇస్తున్న ఉచిత బియ్యం కానీ కందిపప్పు కానీ ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా ప్రజలకు సరఫరా చేస్తున్నాం. మేము ఈ పంపిణీ నవంబర్ వరకు ఉంటుంది. మేము ప్రతి ఒక్కరికి సోషల్ డిస్టెన్స్, శానిటైజర్ యూజ్ చేసి థర్డ్ పార్టీ అథెంటికేషన్ ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తూ ప్రతి ఒక్కరికి సరుకులు అందే విధంగా మేము ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాము. ఈ నెల 20వ తేదీ వరకు కూడా లాస్ట్ డేట్ ఉంది సరుకులు. ప్రతి ఒక్క లబ్ధిదారుడు కూడా ప్రతి సరుకు అందుతుంది అని అందించే ప్రయత్నం మేము చేస్తున్నాము. నా పేరు ఏ ప్రేమ్ కుమార్. ఈరోజు ఈ కరోనా నేపథ్యంలో ప్రజలకు మనం ఆహార భద్రత కింద ఆహారానికి సంబంధించి మనం ఏంటంటే ఈ నిత్యావసర సరుకులను మనం సరఫరా చేయడం జరుగుతుంది కదా. దీంట్లో భాగంగా మనకి ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి వస్తున్న సూచనల ప్రకారం వాళ్ళు ఇస్తున్న కోట, మళ్ళీ అదే మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్న కోట, ఈ రెండు కలుపుకొని మనం నిత్యావసర సరుకులు మనం ప్రజలందరికీ పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పటి వరకు మన ఉప్పల్ సర్కిల్కి సంబంధించి మొత్తం 1,65,000 మంది రేషన్ కార్డుదారులు ఉంటే అందులో మనం 1,00,000 మంది కూడా ఇప్పుడు కార్డుదారులు అందరూ కూడా రేషన్ తీసుకోవడం జరిగింది.
कोरोना वायरस से मुतासिर गरीब खानदानों को राहत फराहम करने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू करदा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वकाराबाद ज़िले में गरीबों के लिए एक बड़ा सहारा बन गई है। इस स्कीम के तहत फूड सिक्योरिटी कार्ड्स रखने वाले हर फर्द को 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मुफ्त दी जा रही है। इसी तरह रियासती हुकूमत की जानिब से भी 5 किलो चावल दिए जा रहे हैं। जुमला एक फ़र्द को 10 किलो चावल मुफ्त में दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर इस्तेफादा कुनंदगान में मसरत देखी जा रही है। ఇంతకు ముందు 2 నెలల కిందనేమో 12 కిలోల బియ్యం వేసిండు కేంద్ర ప్రభుత్వం కలిసి మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం నుండి కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి కూడా 1500 రూపాయలు 2 నెలలకు ఇచ్చిండు. కిరోసిన్ గ్యాస్ కూడా ఫ్రీగా ఇచ్చిండు. మనకు 3 సిలిండర్ల గ్యాస్ ఫ్రీగా ఇచ్చిండు. ఈ నెల 10 కిలోలు కూడా ఇస్తుండు మనకు కేంద్రం నుండి, మన రాష్ట్రం నుండి కూడా. మనకి ఈ నెలల 2 కిలోల కందిపప్పు, 1 కిలో చక్కెర, కందిపప్పు 812 కిలోలు రావడం జరిగింది. అందులో చక్కెర 85 కిలోలు రావడం జరిగింది. లాక్డౌన్ టైంలో 5 కిలోలు నరేంద్ర మోడీ గారు, 5 కిలోలు కేసీఆర్ గారు పంపిణీ చేయడం జరుగుతున్నది. ఒక వ్యక్తికి 10 కిలోల చొప్పున పంపిణీ చేయడం జరుగుతున్నది. भारत के इंतखाबी कमीशन ECI ने कोविड-19 वबा के तनाजुर में इंतखाबात और अवामी जलसों के बारे में सियासी पार्टियों से उनके नज़रियात तलब किए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सभी सियासी पार्टियों से दरख्वास्त की है कि वो अपने नज़रियात और मशवरे इस महीने के आखिर तक दाखिल करें। इलेक्शन कमीशन ने अपने मकतूब में कहा है कि कुछ रियासतों में ज़िमनी इंतखाबात और बिहार असम्बली के इंतखाबात इस साल कराए जाने हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के चीफ नूर वली मसूद को एक आलमी दहशतगर्द करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने महसूद को अलकायदा के साथ मुंसलिक तंजीमों की तरफ से और उनकी हिमायत में माली रुक़ूमात फराहम करने, मनसूबा बनाने और साजिश तैयार करने की कार्रवाई में मुलविस होने पर ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 1267 ISIL और अलकायदा पर पाबंदियों से मुताल्लिक़ कमेटी ने महसूद को ISIL, दाइश और अलकायदा की पाबंदियों वाली फहरिस्त में शामिल कर लिया है। उसे इस फहरिस्त में एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पर शामिल किया गया है, जिसके असास से मुंजमद कर दिए गए हैं और उसके सफ़र नीज़ हथियार रखने पर पाबंदी लगाई गई है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के मुताबिक आज और कल हैदराबाद के बशमूल तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर तेज़ और हल्की बारिश हो सकती है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कल से आज तक कई मुकामात पर बारिश हुई है। सीज़न में मुनासिब बारिश होने की वजह से काश्तकारी उरूज पर है। वहीं दूसरी जानिब दरियाए कृष्णा और गोदावरी की तास में वाक़ आबी ज़खायर में पानी का इनफ्लो बढ़ गया है। आखिर में खबरों का खुलासा एक बार फिर। जम्मू कश्मीर के दौरे के मौके पर राजनाथ सिंह ने किए अमरनाथ के दर्शन। लाइन ऑफ कंट्रोल सूरत हाल का लिया जायजा। राजस्थान में सियासी गहमा गहमी उरूज पर कांग्रेस की जानिब से जारी करदा ऑडियो टेप का CBI जांच करवाने बीजेपी का मुतालबा। मुल्क भर में कल के मुकाबले कोरोना केसेस में कुछ कमी। नए 34,884 मामले दर्ज। पहले मुकाम पर महाराष्ट्र और दूसरे मुकाम पर तमिलनाडु। और पहले देसी साख्ता वैक्सीन की तैयारी में पेशरफ्त। 12 दवाखानों में 375 मरीजों पर क्लिनिकल जांच शुरू। भारत बायोटेक का इंकशाफ।